ਗਿਆਨ ਕਾ ਸਾਗਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਗੁੱਗਾ ਯਾਹਰ ਪੀਰ ਜੀ ਭਾਗ 11ਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਤੇ ਕੈਲੂ ਨਾਗ ने 2 बार कीते और 2 बार ही कैलू नाग दे फेल हो गए। सो दूसरे बार दे विच महाराणी बाशल ने कैलू नाग नूं सिरी अते पूछ तो फड़ के खिंच के सुट दिता। आप नथा धोरी नूं कहा कि पुत्र गड्डी उस जगह ते लै चल जिस जगह ते पानी दा इंतजाम होवे। सो महाराणी बाशल दी गड्डी जा रही है, लेकिन कैलू पिया तड़फदा। उधर महाराणी बाशल नूं पानी दी जरूरत है। सो तीसरे बार दे लई कैलू नाग सोच रहा। होश आई ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਸਾਗਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਹਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਟੀਨਿਊਜ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਥਾ ਯਾਹਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, 11ਵਾਂ ਭਾਗ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਗੁੱਗਾ ਯਾਹਰ ਪੀਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਲੂ ਨਾਗ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਨੇ ਨਥਾ ਧੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਲਦੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਾਸ਼ਲ ਹੀ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਚੱਲ। ਨਥਾ ਧੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਕੈਲੂ ਨਾਗ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਲੂ ਨਾਗ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰਵੈਣੀ ਰਚ ਲਈ, ਖੂਹੀ ਰਚ ਲਈ। ਆਪ ਉੱਥੇ ਪੌ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੋਲ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਗੜਵੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਗੜਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਪੀਵੇਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਥਾ ਧੋਰੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਰਵੈਣੀ ਹੈ, ਖੂਹੀ ਹੈ, ਪੌ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਚੱਲ ਗੱਡੀ, ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ
जाके रोक दी। जिस जगह ते कैलू नाग पौ बन के बैठा सी और जहर की गड़बी भरी हुई आ, नथा धोरी गड्डी तो उतर के कहा कि पंडित जी पानी चाहिए, माता जी नूं पानी पिलाउणा है। सो कैलू नाग ने वो विष की गड़बी जिहड़ी भरी हुई सी ਚੱਕੀ, आ माता जी नूं पानी पिला दिओ, तुहाडे लई पानी मैं होर कढ़ दिन्ना, ये पानी लै जाओ। जिस वेले वो विष की भरी हुई गड़वी लिजा के माता जी नूं फड़ा दित्ती। माता जी हुण फड़ के मूँह नूं लगे लाउण, अजे बुल्लां तो दूर ही आ, बुल्लां तक पहुँची नहीं। पेट दे विचों एक ऐसी हुछली जे बजी, वो गड़वी जमीन ते डिग पई। जमीन ते घाह सी, घाह नूं पड़ के अग लग गई। उधर देखिया ना तरवैणी है ना पौ है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जिस वेले महाराणी बाशल ने उधर नूं देखिया, फिर घबरा गई कि पुत्र नथा धोरी हुण आपां ने किते भी रुकना नहीं, रुकना नहीं। हुण किते भी किसे ना किसे तरीके दे नाल मैनू सरसे पट्टी पहुँचा दे, आपां सरसे पट्टी पहुँच जाइए। हुण मैनू पानी की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इन्ना ही है कि मैनू किसे ना किसे तरीके दे नाल हुण सरसे पट्टी पहुँचा दे। नथा धोरी ने कहा कि ठीक है माता जी, कोई गल नहीं, लेकिन बड़ा खतरनाक घना जंगल है, जंगल का रास्ता, महाराणी बाशल दी गड्डी जा रही है। कैलू नाग सोचदा कि तीसरा बार भी मेरा फेल हो गया, लेकिन मैं हुण करां की करां। जेकर बिना बार कीते तो वापस जाना तो सारे शरीके भाईचारे ने भी बेइज्जती करनी है कि गया सी सूरमा बन के, लेकिन करके कुछ भी नहीं आया, ये कोलों कुछ भी नहीं होया। लेकिन शरीके भाईचारे ने भी और मेरी औरत ने मैनू सदा ही इस गल दे मेहने मारिया करने आ कि वड्डा सूरमा बन के गया सी, लेकिन कीता कुछ नहीं, करके कुछ नहीं आया, बहादुर बन के सूरमा बन के गया। हुण कैलू नाग सोचदा कि कोई ना कोई ऐसा वार कीता जावे जिहदे नाल कुछ ना कुछ मैं करके ही वापस जावां। इस तरह गड्डी जा रही है। उधर उस गड्डी तो फिर कैलू नाग अगे निकल गया। जिस वेले कैलू नाग गड्डी तो अगे निकल गया, की देखदा, की विचार किया, की सोचिया, आखिर हुण माता बाशल ते तां बार नहीं चलदा। हुण कैलू नाग ने जुगत सुझी है, जुगत की करदा, हरी हरी घाह दे विच एक छोटा जिहा सपोलिया बन के लुक गया। उधर गड्डी जा रही है भज्जी, लेकिन हरी हरी घाह नूं देख के पशु दे भावां मूँह ते शिकली भी लगी होवे, जरूर हरी हरी घाह नूं देख के पशु जरूर मूँह मारदा है। लेकिन जिस वेले उस जगह ते गड्डी आई जिथे हरी हरी घाह रजी हुई सी, जिस घाह दे विच कैलू नाग छोटा जिहा सपोलिया बन के लुकिया होया सी, धौले बैल ने जांदे जांदे ने जिस वेले मूँह मारिया तां कैलू नाग दी चलाकी काम आ गई। कैलू नाग ने धौले बैल दे जीभ ते डंग मार दिता। जिस वेले डंग बज्जा, डंग बजदियां सार वो धौला बैल डिग पिया, गड्डी रुक गई। माता बाशल ने पूछा कि पुत्र की होया? कहंदा माता जी भी पता नहीं लगा कुछ भी, बैल डिग पिया, देखदा देखिया बैल नूं, कहंदा माता जी भी बैल खत्म हो गया, माता जी बैल मर गया। हुण माता बाशल जंगल दे विच धाह मार के रोंदी है, करलांदी है, जगत गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी नूं याद करदी कि गुरुदेव इस घने जंगल दे विच मेरा कोई सहारा नहीं रहा, ये जो बैल वा ये भी खत्म हो गया, एक बैल दे नाल गड्डी जा नहीं सकती, ऐ गुरु महाराज मेरे ते किरपा कर दिओ, मेरे ते दया करो। हुण नथा धोरी भी सोचदा कि की कीता जावे, गड्डी बहुत अगे आ गई है, इत्थों बैल किते लियाउणा भी बड़ी मुश्किल गल आ, की करिए, की होना चाहिए।
इसी तरह एक आवाज़ आई है, एक आवाज़ आती है कि माता जी की गल आ, इत्थे जंगल दे विच काहतों आए आ, की वजह है। माता बाछल नूं पता नहीं लगता कि आवाज़ कित्थों आ रही है। नत्था धौरी नूं पुछया कि पुत्र तू मैनू कुछ कह रहा? कहंदा नहीं माता जी, मैं तो तुहानू कुछ नहीं कहा ना कह रहा। फिर आवाज़ आई ते पुछदी है कि भाई तू कौन है, मैनू माँ कहण वाला, कित्थे बोलदा? तो दस्सिया कि माता जी मैं तुहाडे होण वाला पुत्र हाँ, तुहाडे पेट दे विचों बोलदा हाँ। तो महाराणी बाछल ने सुनिया, सुन के जगत गुरु गोरखनाथ जी की धन धन करदी है कि गुरुदेव जिद्दां तुसीं कहंदे सी कि यारी करामात होवेगी, ठीक है, लेकिन महाराणी बाछल ने कहा कि पुत्र तू मेरे पेट चो बोल के यारी करा दिखाई आ, लेकिन पुत्र मैं इत्थे बहुत औखी हाँ, इत्थे साडा बैल भी खत्म हो गया, धौला भी बैल खत्म हो गया, मर गया, और तेरे बाप ने मैनू देशिया त्याग दे दिता, महला दे विचों कढ़ दिता। महाराणी बाछल दीयां सारियां गल्लां सुणदा दस्सिया कि माता जी फिक्र ना करो, ये जिहड़ा वैल आ ये भी सरजीत हो जाएगा, ਇਹਦਾ ना फिक्र करो। इदा करो अपनी गुद दा एक तंद लैके इस बैल की सज्जी लत्त नूं बन्ह दिओ, बैल ने उठ बह जाना, बैल सरजीत हो जाएगा। माता जी इनू मौत दा गाना कहणगे, इनू रख भी कहणगे। इस मौत के गाने तो इस रख तो हौली हौली जो कि रखड़ी का रूप धारण करके, माता जी ये मौत का गाना होवेगा, इनू रख भी कहणगे। ये मौत का गाना जो एक दिन मैनू भी बनना पैना है। सो उस मौत के गाने जिहड़ा बनाया जहर पीर जी ने धौले बैल की सज्जी लत्त नूं जिस वेले बन्निया, बैल सरजीत हो गया। उस ही रख तो हौली हौली रखड़ी का रूप धारण कर लिया, जो कि भैन ते भरा का त्यौहार राखी का रखड़ी का चलदा। सो इस तरह हुण महाराणी बाछल ने कहा कि पुत्र बैल तो जिंदा हो गया, लेकिन मैं हुण सरसे पट्टी जावांगी। पेट दे विचों आवाज़ आई कि माता जी नहीं, सरसे पट्टी नहीं जाना। क्यों कि मैं सरसे पट्टी दे विच जन्म नहीं लवांगा, भावें जिन्ना चिर मर्जी सरसे पट्टी बैठी नहीं। मैं नानके जन्म लैके नानकियां दियां गालां नहीं सुननियां, लेकिन मैं नानू नहीं कहाउणा। माता जी जरूर तुहानू पिछे मुड़ना पैना, तुहानू पिछे जाना पैना। पुत्र तेरे बाप ने मैनू देश निकाला दे दिता, मैं वापस नहीं जा सकती। ठीक है माता जी, इस गल का फिक्र ना करो, इस गल का इंतजाम हो चुका है, तुहानू फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनियां सारियां गैबी ताकतां पिछे भेज दित्तियां। मेरी दादी, मेरी भूआ ते मेरे बाप नू वो सारियां गैबी ताकतां जो कि डरा रही ने, जिवें नार सिंह वीर, हनुमान वीर, रहपा वीर, भैरो वीर, ये सारे डरा रहे ने। जल्दी ही मेरा बाप गड्डी लैके आवेगा, गड्डी नहीं रथ लैके आवेगा, रास्ते विच लिजा के तुहानू घर पहुँचावेगा और तुहानू कोलों माफ़ी मंग के इत्थों तुरेगा, और मेरी दादी माता माफ़ी मंगेगी, और मेरी भूआ जी तुहाडे कोलों माफ़ी मंगेगी। सो प्यारिओ इस तरह आने वाले भाग दे विच ये देखना कि राजा जैंबर वाकया ही रथ जोड़ के महाराणी बाछल नूं लैण लई आउंदा और माफ़ी मंगदा, और किवें
ਯਾਹਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਗਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।